So, hi everyone, this is Mansingh Bhadoria from School of Commerce, and I'll be explaining you measures of central tendency. First of all, we'll be knowing the introduction, what is measures of central tendency. So, as we know, since we have studied about it in our previous classes, uh, that there are various types of data that can be organized through various forms like tables, charts, and frequency distribution. And we also know that this frequency distribution has graphical distribution, like they are represented in pie charts or the bar charts, etc. But these distributions also have a central value that can be taken out, and that is what we call central tendency. Also, every time it is not convenient for the interactor to understand the clear picture of what the user is trying to say in the to the pictures or from the graphs. So many a times we use averages as the median to understand those things. So first of all, we'll know the meaning. What is central tendency? Central tendency होता क्या है? So, measures of central tendency is a single value which is used to represent an entire set of data. तो measure of central tendency ना एक single value होती है जिसमें जो एक पूरे डेटा के सेट को आपका फ्रिक्वेंसी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है. In our high school classes we have known about the we do know about the sampling of data which we usually learn in the economics. So उसमें क्या होता है कि एक बंदे को ग्रुप ऑफ पीपल में से एक बंदे को सिलेक्ट किया जाता है and what he does is he has been asked question and his answers are regarded as the answers of the group. So central tendency is kind of same but yet very different. सेंट्रल टेंडेंसी में हम एक मैथमेटिकल प्रोसीजर मैथमेटिकल ऑपरेशन फुल्ली फॉलो करते हैं एंड आफ्टर दैट द वैल्यू विच इज टेकन आउट फ्रॉम मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसको हम एज द सिंबल मानते हैं तो रिप्रेजेंटेशन मानते हैं. वैसे इसको निकालने के तीन तरीके हैं अरिथमेटिक मीन मीडियन एंड मोड. So let's go towards the objective and functions of averages. What are the use? So firstly, the use is to represent huge data in summarized form. So ऐसा होता है कि in various organizations, when you come to college, you get to know because you learn here in aggregate level that in various organizations, the analyzers they don't usually have time to know various things at a single, you know, they have to go through many things, so they cannot go through the details. So what the employees do is that use central tendency to take out the central value and it can be used as a representation, so it saves the time. So मीन मीडियन मोड बहुत सुना है हमने, स्टैट्स में पढ़ा है, तो यही होता है, टेंथ में भी पढ़ा है, 11th 12th में भी पढ़ा है. सो इसका यही होता है कि एक समरी वो शो करता है. उसके अलावा कंपैरिजन इजी हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं. जब हम किसी क्लास में पढ़ते हैं तो लास्ट ईयर और इस ईयर की अगर हम मार्कशीट के डेटा को एनालाइज करते हैं तो जब हम मीन निकालते हैं कि एवरेज स्टूडेंट मतलब पर पर्सन पर हेड एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं, सो कंपैरिजन इजी हो जाता है. जैसे लास्ट ईयर इफ एनी per average is 67 and this year it is 80, so it is easier to analyze कि डेवलपमेंट हुआ है बच्चों में, दे आर स्लाइटली हायर फ्रॉम द लास्ट वन. बट सिमिलरली अगर पिछली बार 80 थी, 67 है, तो एनालाइजिंग कंपैरिजन इजी हो जाता है, राइट, कि हमें समझ में आ जाता है कि हम कैसे मतलब कैसे कर रहे हैं बच्चे. ऑल्सो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देता है, लाइक कि um, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले लेते हैं फॉर कंपनी बिग ऑर्गेनाइजेशन की मीन मीडियन मोड से हमने निकाला कि हमारी प्रोडक्ट की सेल्स कैसे जा रही है. तो प्रोडक्ट की सेल्स में अगर डिक्लाइन है so they can use they have to take some measures
they are supposed to use some measures to control it, because अगर सेल्स डिक्लाइन हो जाएगी तो कंपनी कैसे चलेगी, राइट? सो सेंट्रल टेंडेंसी इसमें भी हेल्प करता है। यूनिवर्स, टू नो अबाउट यूनिवर्स फ्रॉम अ सैम्पल। अब यूनिवर्स फ्रॉम अ सैम्पल का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि उसके डेफिनेशन में सजेस्ट किया कि इतनी बड़ा डेटा सेट जो हम बनाते हैं, वी हैव ऑलवेज स्टेप डेविएशन मेथड जो हम देखते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं, तो उसमें हमने क्या देखा कि इतना बड़ा टेबल बनाते हैं लेकिन उसमें से एक छोटी सी वाली निकल के आती है। तो वो यूनिवर्सल काइंड ऑफ थिंग है जिसमें से एक छोटी सी सैम्पलिंग की थिंग निकल के आ जाती है, तो रिप्रेजेंटेशन ईजी हो जाता है। A trace precise relationship up. This is an important one. So average becomes essential when it is desired to establish a relationship between different groups in quantitative terms. Um, as a BCom student or as a commerce student, I would say that many of you must have studied about departmental accounting, and if not, like for the PCM students or for the 10th class students, departmental accounting कुछ नहीं होता है, ये एक वो है कॉलेज है, मान लो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे मैं डीएवी में हूँ, सो एसओसी है, एंड आईआईपीएस है, आईएमएस है, जो भी है, तो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो हर डिपार्टमेंट का ना एक अलग सा अकाउंटिंग होता है। इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस, एचआर, सेल्स, एनालाइजर, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इसमें ना व्हाट दे डू इज दे ईच डिपार्टमेंट मेक देयर पर्टिकुलर accounts, or they make their particular representation of data। तो उसमें कितना हमें किस चीज़ का रिलेशनशिप कैसा सेट हो रहा है, लाइक फाइनेंस और सेल्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना सेल्स वालों को फंडिंग मिलेगा उतना सेल्स में इंक्रीज हो सकता है, लाइक देयर आर चांसेस, वी कांट यूजुअली से फॉर श्योर बिकॉज देयर आर चांसेस। सो ऐसे हम फाइनेंस को भी, पर ऐसा नहीं कि फाइनेंस डायरेक्टली सारा पैसा सेल्स को देता है, यू हैव टू मेंटेन सर्टेन अमाउंट, बिकॉज वो एचआर वालों को भी पैसा देना होता है, वो क्योंकि वो सैलरी प्रोवाइड करते हैं, उनको एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग वालों को भी देना होता है। तो डिफरेंट थिंग्स होती है, राइट? प्रोडक्ट्स वालों को देना होता है बिकॉज उनको प्रोडक्ट बनाना होता है। सो मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं, एंड ऐसे जो हम जब मीन मीडियन मोड या सेंट्रल रेडियस निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से डिपार्टमेंट को कितनी नीड है, किस चीज़ की नीड है, तो वो उस पर्टिकुलर दूसरे डिपार्टमेंट से उस नीड को फुलफिल कर सकता है। So this was an important one. Keep this in mind. Okay. So base for computing other measures. Central tendency सिर्फ statistical analysis के लिए तो यूज मतलब होता ही है, but also for other measures like dispersion, huge topic, और उसके अलावा स्क्यूनेस, तो बहुत स्क्यूनेस और स्क्यूनेस whatever you pronounce it, so ये सब चीज़ों के लिए यूज होता है। रिक्विसाइट्स, रिक्विसाइट्स क्या है कि मतलब क्या एक पर्टिकुलर रूल्स है या एक पर्टिकुलर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, रिजिडली डिफाइंड है। हम एवरेज में कंफ्यूज नहीं होते, राइट? अगर तुम्हें पता है कि 5 लोगों के मार्क्स हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ओके, so 10, 20, 30, 30 plus 30, 60, 60 plus 40, 100, 100 plus 150 is equal to 150, 150 5 लोग के मार्क्स है, 5 चीज 30, 30 कट हो गया, सिंपल मीन बताया मैंने, तो ये 30 मार्क्स आ गए। अब ये जो 30 मार्क्स आए, ये एक बहुत क्लियर सा थिंग है, देयर इज नथिंग वेरी कंफ्यूजिंग इन इट, this is rigidly defined, there are no things that can confuse you out। Basically chapter is very easy, you just need to learn it up and just go through the concepts. Now, then the thing is that these are all based on observation. You will always find words like it was observed that, it was seen as, it was observed, like analyzed as. The, for example, if you frame a certain question, see, it will analyze that in a certain class, so this year students had a downfall in their marks। So analyzing का बहुत बहुत key role होता है इसमें। Then अब इसमें ना अफेक्ट जो होता है ना, सैम्पलिंग का अफेक्ट इसमें नहीं होता, बिकॉज हम एक रैंडम पर्सन नहीं यूज कर रहे, वी आर यूजिंग द होल डेटा। सो होल डेटा यूज करने में ना हम सैम्पल्स में हमें दिक्कत नहीं आती है, लाइक सैम्पलिंग जब हम एक अज्यूम मीन में लेते हैं, राइट, तो वही वो तो हमारे द्वारा चूज किया हुआ सैम्पल है ना, तो उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत लीस्ट सा फर्क
केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। अब हमने सिंपल एवरेज निकाले, सिंपल एवरेज में हम कंबाइंड एवरेज निकाल सकते हो, सीरीज क्वेश्चन निकाल सकते हो, तो बहुत सारी चीज के लिए हम अलजेब्रा का उसमें बहुत सारे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट जिससे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं उसमें उसको यूज कर सकते हैं। easy to understand calculate, as I said कि easy होता है, it's just about formulas and concepts that you need to go through, not affected much by extreme values. वैल्यूज का अफेक्ट पड़ता है बट ज्यादा नहीं पड़ता है, एवरेज यू विल सी कि अब लाइक एक जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था 10 20 30 40 50, एक बंदा था उसके 10 मार्क्स थे, एक बंदा था उसके 50 मार्क्स थे, तो एक्सट्रीम डिफरेंस इन वैल्यू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 30 मार्क्स ही आया क्योंकि दोनों का मिड है, राइट। सो इसलिए दिस इज हेल्पिंग वन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब टाइप्स ऑफ एवरेज कितने होते हैं? 3 होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज एंड कमर्शियल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में क्या होता है? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेज में क्या होता है? मीडियन और मोड। और कमर्शियल एवरेज में क्या होता है? मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, कंपोजिट एवरेज। तो ये टाइप्स हो गए। देन मीनिंग अरिथमेटिक मीन। In this lecture, we'll only go with arithmetic mean. We won't go with mode and median. So, cause we don't have to make it so long. It's just that you need to understand the concept first, go through it, and then we'll learn about it more. So, it is one of the most important one, and it has most variety also, because arithmetic mean is usually defined as the sum of values of all observations divided in, मतलब जो मैंने बताया 10 20 30 40 50 अपॉन 150। सो दैट इज हाउ वी टेक आउट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का जो साइन होता है दिस यूजुअली दिस एक्स बार, दिस इज द साइन ऑफ अरिथमेटिक मीन और द एवरेज व्हाट वी यूज। काइंड ऑफ अरिथमेटिक मीन, 2 अरिथमेटिक मीन होते हैं, सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन। इसके बहुत सारी टाइप की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, सिंपल दिया रहता है, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, क्योंकि हम पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ अरिथमेटिक मीन पढ़ रहे हैं, तो हम इसके सीरीज तो तीनों पढ़ेंगे और मेथड से पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विथ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में ना हम ऐसा देखते हैं, सिंगल सिंगल दिया रहता है ऐसा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, स्टूडेंट्स का नाम दे देंगे और मार्क्स, ऐसा जो क्वांटिटिव वैल्यूज है ना वो सब सिंगल दिया रहता है, देयर आर नो मेनी वैल्यूज इन इट। अब हम उसमें क्या करेंगे, हम एन नंबर निकालेंगे। एन नंबर मतलब कितने लोगों का निकाल रहे हैं हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। नाउ द फ्रीक्वेंसी विच वी हैव इज 85 60 50 75 55 40 55 70 45 एंड 65। सो ये हमारे मार्क्स हैं। अब पहले हम उसका टोटल निकालेंगे। मार्क्स का टोटल क्या आ रहा है? हमने यहाँ निकाला 600। 600 क्या है? सबमिशन। अब ये साइन क्या है? सबमिशन बोलते हैं इसको। एन मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ओके। तो सबमिशन ऑफ एक्स, एक्स ये है, सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन मतलब टोटल नंबर ऑफ marks of every student, that is 600 upon total number of students, that is 10। जब हमने निकाला तो क्या आया? 60 मार्क्स। अब ये क्या है? ये हमारा एक सिंपल सा मीन आ गया, अरिथमेटिक मीन। अब इसमें यू हैव वन मोर मेथड, दिस वाज डायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी। शॉर्टकट मेथड में क्या करना है ना, हमको एक अज्यूम मीन ले लेना। अब मैं इसको अच्छे से बताती हूँ, लाइक यू हैव दिस, वही है हमारे पास 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये हमारे पास मार्क्स है। अब हमने क्या किया, एक कोई सी भी फ्रिक्वेंसी को, कोई से भी एक्स जो है उसको हमने अज्यूम मीन ले लिया। ये क्या है? 50। अब 50 से मैंने क्या किया ना, इन सब चीजों को, ये एक्स जो थे इसमें से 50 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो मैंने मतलब माइनस किया तो ये आ रहा है +35 +10, ऑब्वियसली 85 माइनस 50 +35, 60 माइनस 50 10, 50 माइनस 50 0, 75 माइनस 50 25, 55 माइनस 50 +5, 40 माइनस 50 -10, 55 माइनस 55, 70 माइनस 50 20, 45 माइनस 50 -5, 65 माइनस 50 +50। तो इससे क्या होना, हमारी वैल्यूज कम हो जाती है। अब हमारी वैल्यूज कम हो गई तो हमें क्या हो गया, हमारे पास एक वो आ गया, नंबर्स छोटे हो गए तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो गई। अब कैलकुलेशन ईजी हो गई तो हमारा क्या हो गया, ये दिस। अब इसका टोटल क्या आ रहा है? 100। अब हमने क्या किया,
ये जो एक्स बार है जिसको मैंने आपको बताया था कि इसको मीन बोलते हैं, ठीक है, ये मीन होता है ना, ये मीन होता है, दिस इज मीन। अब हमने हमारा फॉर्मूला तो वही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें हमारा जो टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, वो ये वाला पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट। ये वाला हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट ले रहे हैं, हम ये वाला ले रहे हैं, है ना। इसका जो है वो हम ले रहे हैं ये। सॉरी फॉर द थिंग, मैं माउस यूज कर रही हूँ, तो दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम इज देयर। तो अब जब इसका क्या टोटल है 100, तो ये हमने यहाँ रख दिया, ये हमने 100 यहाँ रख दिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास था ही 10, वो हमने उसकी जगह पे रख दिया। अब क्योंकि हमने 50 हर जगह से माइनस किया था, ये जो है, तो हमने हर जगह से माइनस किया था, तो इसको हमने प्लस कर दिया। अब हम इसको जब टोटल इसका मैथमेटिकल निकालेंगे, ये हमारे लिए इजी है थोड़ा सा, तो हमारे पास 60 आ जाएगा। दिस इज योर शॉर्टकट मेथड। आप कोई से मेथड से करो, आपका आंसर हमेशा हमेशा सेम आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें ये हल्का सा लंबा होता है, बट दिस इज मोर क्लियर वन। इसमें आपको क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है। ओके, सो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने स्टेप डिवीजन में करा क्या है। आई यूज अ डिफरेंट इंक हियर, और थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं। So we have the same number of students, that is 10. We have the same number of marks, that is 10. We have assumed the same thing as the assuming, that is 50. अब हमने d निकाल लिया, that was x minus a, जो कि हमने ऊपर किया था यहाँ पे, this is also d. ओके, ये d है, this is d, है ना, this is d. तो हमने d निकाला, a हमारा 50 था, ये रहा यहाँ पे, और इसको जब हमने किया तो ये हमारी ऑप्शन में आ गया। अब d का हम क्या करेंगे, d में हम x माइनस ए अपॉन सी, ये d डैश होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट दिस इज लाइक दिस। ये ये हमारा d डैश आ गया। ये जो हमारा x माइनस ए था, इसमें हमने c वो कर दिया, चल दिया। c क्या है, 5 है। ओके, बिकॉज 5 इज डिविजिबल, 5 हमारा डिविजिबल था, c से डिवाइड कर दिया, c हमारा क्या है, 5 है ना। ये हमारा क्या है, 5। अब इससे क्या होगा ना, ये जो वैल्यूज है ये और छोटी हो जाएगी, और छोटी वैल्यूज होने से हमारा काम थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। सो सी माइनस 35 माइनस 5, 35 माइनस 5, 35 upon 5 7, 10 upon 5 2, sorry I got a bit confused, 0 upon anything 0, 25 upon 5 5, 5 upon 5 that is 1, minus 10 upon 5, माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा, दैट इज -2 plus 1 for the same process, and then so on. Now next what we do is, अब ये हमारी प्रोसेस सेम है, तो आप लोग बोलोगे कि इधर हमने ए क्यू ऐड किया। सो हमने ये ऊपर भी देखा था कि हमने यहाँ क्या किया था, हमने यहाँ पर जो ए है वो माइनस किया था। Now, as I have told you that every time when we go through median or mode, we have to take all the values. So why can't then this makes it compulsory that we have to include 50 also in our data. But since we have subtracted 50 from everything, we haven't included it yet. So that is why we have added 50. हमने यहाँ पे 50, मैंने आपको बताया था कि हमें हमारा पूरा डिटेल लेना होता है।
अब हमने यहाँ क्या किया, 50 को माइनस कर दिया था सब में से, तो 50 माइनस करने की वजह से हमारा यहाँ पे 50 इंक्लूड नहीं है कहीं भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 50 को ऐड किया, बिकॉज हमें सारे जगह ना मैंडेटरी है। सेम गोज फॉर दिस थिंग कि हमने यहाँ पे 50 माइनस किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 50 ऐड किया है, 20। अब हम यहाँ पे एन जो सबमिशन लेंगे वो ये लेंगे, बिकॉज हमने इसकी वैल्यू छोटी कर दी है, एंड जो हमारा एन है वो तो सेम है। अब यहाँ 5 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, डाटा हैज द सेम कंसेप्ट, हमने यहाँ 5 को डिवाइड कर दिया था, हमें सारी चीजें इंक्लूड करनी है, तो इसलिए हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द आंसर इज 6। बट वी हैव सम example, and you can take, all of you can take the screenshot and then solve it by yourself, since I have told you how to do it already. Okay, now next we'll be going to discrete series. Discrete series में भी हम directly देख लेते हैं हमें क्या करना है. Now I'll use a different ink here. So discrete series में हमारे marks यही हैं. अब discrete series में क्या होता है ना, we have marks, we have number of students. Now what, अब ये हमारा टोटल नहीं है, 8 मार्क्स 20 लोग को आया, तो टोटल मार्क्स कितने हुए, 160। ठीक है, अब नेक्स्ट 12 मार्क्स 30 लोग को आया, 360। ऐसे करते करते हमें सारी चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, नाउ अब हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा एक कोई सी वैल्यू आ गई। It's not getting erased, I don't know why. So this is 2460. Yeah, 2460 आ गया हमारा। अब ये जो 2460 ये क्या है, इसका टोटल, इसका टोटल। ओके, सो ये क्या है, और ये है हमारा एक्स है, ये भी नहीं दिख रहा है, हमें इसमें डालना पड़ेगा ये। सो दिस इज आवर एक्स। नाउ अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने ऐसा किया है कि ये आपको डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड दे दिया है कि 40 से आपने माइनस कर दिया, बट हम नॉर्मल देख लेते कि इसमें क्या होगा। अब इसमें है समीशन ऑफ एफ, दैट इज 2 4 6 0 अपॉन 60। ओके, सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 12, 6 is 18, 6 4 are 24, so 6 4 are 24 and 6 1 are 6। ये हमारा आ गया नॉर्मल से। अब हमने इसी में क्या किया ना कि 40 को माइनस कर दिया था सबसे, लाइक हमने ये अज्यूमिंग ले लिया था, फिर इसको माइनस कर दिया, तो हमारा एक्स क्या आ जाएगा, क्या हमारा एक्स क्या आ जाएगा, 20 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30, ये हमारा आया। अब उसमें हमने एफ एक्स मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका और इससे मल्टीप्लाई करते, 8 2 जा, तो ये करने के बाद हमारा आता +60। don't think it will be +60, it would go the same, and then हम जब उसके बाद हमारा ये एफ इज समथिंग डिफरेंट, इसका जो भी टोटल आता उसके अपॉन में हम 60 रखते +40 कर देते, तो हमारा 41 आ जाएगा। हाँ, +60 आता, +60 अपॉन 60 इज, जब उसको काट देंगे तो 1 आएगा, और 40 + 1 = 41। अब स्टेप डेविएशन में कुछ भी नहीं करा है, स्टेप डेविएशन में जो हमने यहाँ तक की प्रोसेस करी थी ना, ये प्रोसेस, इसमें बस अपॉन सी कर दिया। हमारा सी क्या है, 10, बिकॉज 10 यहाँ पे सबसे डिविजिबल है,
तो हमारा, और फिर ये करने के बाद क्या है, ये वैल्यूज आ रही हैं और इन वैल्यूज को आने के बाद हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है एफ डी से। अब एफ डी आने के बाद हम जब सॉल्व करेंगे, सी को प्लस ए को प्लस करना है, हम जानते हैं क्यों, 10 को मल्टीप्लाई करना है, हम जानते हैं क्यों, और जब करेंगे तो 41। ओके, सो उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यू विल टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ गोइंग टू कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में हमें ऐसी चीजें दिया रहता है, ऐसे 5 to 10, देन ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज होता है। कंटिन्यूअस सीरीज में हमने मार्क्स रखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखे, मिड वैल्यू क्या हुई, 0 + 5 डिवाइड बाई 2, 0 + 5 डिवाइड बाई 2, देन इट गोज 5 + 10 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा ये आ जाएगा। एंड जब ये जाएगा उसको हम m बोलते हैं, हम इस m का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस विल गेट दिस। अब उसका जो टोटल है वो 405 है, 405 में हम अपॉन 30 रख देंगे, ये हमारा नॉर्मल मेथड है, तो 30.50 आ जाएगा हमारा आंसर। सेम है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसका मिड वैल्यू निकलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसमें हमें मिड वैल्यू में से एक को अजम्पशन ले लेना है, अज्यूम करके हमें यहाँ पे माइनस कर देना है, माइनस करके फिर मल्टीप्लाई कर देना है, एंड देन ये अज्यूम को हमको यहाँ पे, अज्यूम मीन को हमें यहाँ पे ऐड कर देना है, ये जो एफ टी है अपॉन एम कर देना है, यहाँ पे एफ अपॉन एफ कर देना है, और ये हमारे मार्क्स हो जाएगा। स्टेप डेविएशन कुछ नहीं करना है, अपॉन सी रखना है बस। सी रख देंगे तो डी डैश आ जाएगा, डी डैश आने के बाद डी डैश और एफ का मल्टीप्लिकेशन, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका समीशन, उसका समीशन अपॉन ये हमारा जो समीशन ऑफ एफ, ए प्लस करना है, हम जानते हैं क्यों करना है, और सी मल्टीप्लाई करना है, हम जानते हैं क्यों करना है, एंड देन विल गेट द आंसर। सो ये हो गया हमारे स्टेप डेविएशन मेथड के सारे सीरीज। ओके, thank you guys, and do like the video.